I'll just announce you. We're very, very honoured to have Associate Professor. Just 1 minute, I'll get up my nose. Associate Professor Shushi Varma, who is giving a webinar for our Hindu-speaking community, dealing with mental health and perhaps some guidance for us, given the very stressful times that many of us are experiencing due to the COVID pandemic. Associate Professor Varma speaks languages Hindi, Urdu, and Malay. So I believe he's willing to take questions in 3 languages, if you wish. Would you please wait until the end of the presentation and then use the Q&A function at the bottom of the screen, the Q&A function for Associate Professor Varma. If you have any questions of Nitya, Asia, or myself, please use the chat function. So I better introduce myself. My name is Jim Gooden and I'm Vice Chairperson of the Mental Health Foundation of Australia. And I now realise that we're celebrating Associate Professor Dr. Varma's 30th anniversary in this country. So this is a wonderful opportunity to celebrate multiculturalism and see the wonderful talent that we have as personified, of course, with Dr. Varma, who has been a specialist psychiatrist or consultant psychiatrist for 34 years. He is chairman of Delmont Private Hospital. He's a medico-legal expert in psychiatry, and he's currently in full-time psychiatric practice at the Delmont Hospital in Melbourne. He's also been in the past a lecturer in psychiatry at Melbourne and Monash University. He's done extensive research in psychiatry and published 72 publications in international journals such as the British Journal of Psychiatry, ACTA, the Scientific Open Library, the European Journal of Psychiatry, and the American Journals of Psychiatry, to name but a few. He's a very respected speaker on psychiatry at national and international meetings and conferences. His particular interests, special interests, are anxiety disorders, bipolar disorder, depression, general adult psychiatry, and schizophrenia. He takes a pragmatic approach to patient care with a focus on practical treatment through totally individualized consultations and programs. Shashi is committed to providing excellence and attentive to all his patients that he provides care for. His qualifications have been gained both overseas at Lucknow University in India and also here in Australia. We're very fortunate to have such an honoured guest, somebody who I personally know has great connections within the medical and psychiatric community and has generously, very kindly agreed to donate his time and expertise for the community's benefit tonight. How wonderful that we're having the opportunity to have a presentation delivered in Hindi and English, if you wish, tonight. And it demonstrates this wonderful multicultural program that the Mental Health Foundation has embarked upon so successfully. So I welcome you, Associate Professor Varma. Thank you, Jim. Can I just can you see my cursor now or not? Yes, we can. Yeah, I made it pink so that it's okay. All right, thank you, Jim, for inviting me to give a talk. And from here on, I'll speak in Hindi. Yeah, it's okay? Yes, please. You might lose me a little bit, but nevertheless, okay, I'm willing to, I can watch your slides. Okay, so all right, here I go for Hindi. आप सब लोग को हमारा नमस्कार। मेरा नाम शशि वर्मा है। मैं यहाँ पर डेलमोंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ साइकियाट्री की। 34 साल से मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेलबर्न यूनिवर्सिटी और मोनाश में। और मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में कोई टॉक दे रहा हूँ।
तो आज का टॉपिक है डिफरेंट कल्चर में मानसिक बीमारियां। टॉपिक में आज हम करेंगे डिस्कस कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन पर बात करेंगे और कोविड ने मानसिक बीमारियों पर क्या इम्पैक्ट किया है और आप अपने आप को मानसिक बीमारियों से कैसे बचाएं, कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या क्या प्रोफेशनल सपोर्ट है आपके लिए और कहाँ आप हेल्प जो है सीख कर सकते हैं। Not going next. What do I do? It should. Oh yes. Okay. So सबसे पहला है कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं। मानसिक बीमारियां एक तरह की बीमारियां हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसी तरह की दिमागी बीमारियां भी होती हैं। हम लोग कई बार उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है डायबिटीज ब्लड प्रेशर से तो पता चलता है क्या हो रहा है, दिमाग की चीजें हमें लगता है कमजोरी है कि उसको एक्सेप्ट करें, क्या माने। तो ये बीमारियां हैं जो कि आपके मन पर असर करती हैं, जिससे आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपको चिंता रहती है, फिर आपको लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत होती है, उसमें आपको घबराहट होती है, आपका स्वभाव बदलता है जिसमें आपका चिड़चिड़ापन हो सकता है, मन उदास रह सकता है और एंग्शियस रह सकता है। ये जनरली रोजमर्रा में हम सभी लोगों के साथ होती है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए और आपकी रोजमर्रा में इसको असर करने लगे, तब वो बीमारी के रूप में हो जाती है। तो हम सब लोग रोज किसी को नहीं ट्रैफिक जाम से परेशान हो गए और उससे थोड़ी चिंता हो गई कि कल वर्क में लेट हो जाएंगे या बॉस गुस्सा हो जाएगा, ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं। लेकिन जब ये इतना जरूरत से ज्यादा हो जाए, उससे आपको घबराहट और डर लगने लगे और ये आपकी दिनचर्या पर असर करे, कि जैसे आपके रहन सहन पर असर करे, आपके काम पर असर कर रहा है, उसमें आप गलतियां कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारी में असर कर रहा है जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है परिवार में, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और आपके शौक में फर्क पड़ रहा है, तब ये बीमारी का रूप ले लेती है। तो अब डिप्रेशन की अगर बात करें तो डिप्रेशन दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है और सबसे बड़ा कॉज है डिप्रेशन का, जिसमें कि ये मेडिकल साइंस कह रही है कि 2030 में डिप्रेशन नंबर 1 कॉज होगा वर्ल्ड की बीमारियों का। आज के पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हर 20 लोगों में एक व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है। तो ये इतना ज्यादा कॉमन है और इसमें डेथ बहुत होती है। 3000 सुसाइड हर रोज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये तो वो सुसाइड हैं जो कि रिपोर्टेड है। बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं करते, वो हम लोग को पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन से अपने हम लोग को फाइनेंशियल बर्डन होता है सोसाइटी के ऊपर, और अपने काम का नुकसान होता है। जब आप उदास होते हैं, डिप्रेस होते हैं, छुट्टी लेते हैं, कितने दिन साल में छुट्टी लेते हैं, तो उसका जो है उतना प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है काम में। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जो आदमियों में, मेल में नंबर 1 बीमारी जो है वो हार्ट की है, नंबर 2 है डायबिटीज और नंबर 3 है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये आदमियों में पूरी दुनिया में है, हर तरह की बीमारियां मिला के, हार्ट, डायबिटीज एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। लेडीज में एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में नंबर 1 एंजाइटी डिप्रेशन ऑलरेडी है। तो लेडीज में हम तो बात की बात करते हैं कि 20-30 में होगा डिप्रेशन नंबर 1, लेकिन लेडीज में पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी है। दूसरा है हार्ट की प्रॉब्लम्स लेडीज में, और तीसरा है स्ट्रोक पड़ना। और 2030 में कह रहे हैं कि उस 2030 में ये दोनों, ये एंजाइटी डिप्रेशन आदमियों का भी नंबर 1 हो जाएगा, और नंबर 1 बीमारी आदमियों और औरतों में डिप्रेशन होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको जान लें, समझ लें, और उसको जब तक नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका इलाज नहीं कराएंगे, और इससे बहुत नुकसान होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने वाली है, बहुत लोग नहीं बताते, और मैं खास तौर पर बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम सब लोग को शारीरिक बीमारी होती है, एस्मा है, एंजाइना है, आर्थराइटिस है, इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो 20% गिर जाती है।
तो एग्जाम्पल के लिए एस्मा अगर आपको है, तो अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ 100 है, वो 80 हो जाती है। तो 20% क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी गिरी खाली एस्मा होने से। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको उसके साथ डिप्रेशन भी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत गिर जाती है, और इसका हम लोग ध्यान नहीं देते। तो अगर एस्मा देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये 80 पर है, लेकिन अगर यहाँ एस्मा देखें, डिप्रेशन और एस्मा मिला लें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ 65% रह जाती है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों मिलके इतना फर्क पड़ देते हैं कि 100% खुशी लाइफ में नहीं रह जाती, सिर्फ 65% रह जाती है। तो 35% क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। एक बहुत कॉमन बीमारी आजकल सबको हो जाती है, मतलब सबको नहीं, बहुत कॉमन है, डायबिटीज और अर्थराइटिस। बुढ़ापे में अर्थराइटिस और डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। इनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी 79-78% होती है, लेकिन अगर इनके साथ डिप्रेशन जुड़ा है तो आप देख लीजिए कि डिप्रेशन और डायबिटीज मिला के क्वालिटी ऑफ लाइफ से 58% रह जाती है। तो मतलब आप 42% दुखी हैं खाली इन दो मिला के। ये मैं स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं कि ये साथ साथ होती है, शारीरिक बीमारी के साथ डिप्रेशन वगैरह साथ साथ हो जाता है। तो अगर हम डिप्रेशन को इग्नोर कर लें और खाली डायबिटीज ठीक करते रहें, तब भी आपको खुश नहीं रहेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत गिर गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों को एक साथ इलाज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है समझने के लिए उसका। ओके, तो अब चलते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी का हिंदी वर्ड है चिंता। चिंता हम सब लोग को होती है, किसी चीज से हम ट्रिगर हो सकते हैं, तो उससे वो चिंता हो सकती है। और वो रोजमर्रे की चिंता में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम सबको होती है, हमको भी होती है, आपको भी होती है। लेकिन जब वो चिंता आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर करती है, आपके रोजमर्रा के घर के रिश्तेदारी में, आपके जॉब में, आपके सोशल रिलेशन में, दोस्ती यारी में जब असर करती है, और हर जगह जब आप एंग्शियस रहते हैं, तब उसको हम बीमारी कहते हैं। एक सेकंड वेरी क्विकली। तब उसको बीमारी कहते हैं। और उसके सिम्टम क्या होते हैं? तीन। एक तो शारीरिक सिम्टम होते हैं। शारीरिक सिम्टम, आपको घबराहट होती है, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस होते हैं, आपको ठंडा गर्म साथ साथ लगता है, दिल का रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, आपके सीने को ऐसा लगता है जकड़ लिया है, सांस तेजी से चलने लगती है, और बहुत टेंशन रहती है। ये तो शारीरिक सिम्टम हुए। दिमागी सिम्टम है, डर लगता है, चिंता रहती है, और राई का पहाड़ बना देना। छोटा सा हुआ कि कल हम जॉब पर नहीं जा पाए, तो छोटी सी बात है, आपने एक दिन की लीव ले ली, लेकिन अगर आपको एंजाइटी है तो आप उसको कहेंगे लीव नहीं ले ली, मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा, कल को मुझे वो सैलरी रोक देगा, परसों जॉब से निकाल देगा। तो आप राई को पहाड़ बना लेते हैं एंजाइटी में होने में। और फिर उसका जो बिहेवियर है, उसको जो आपके व्यवहार में असर आता है कि आप उन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। कि आप अगर पढ़ाई में डर है कि फेल हो जाएंगे, आप स्कूल जाना बंद कर दें, काम जाना बंद कर दें, दोस्तों यारों से मिलना बंद कर दें। एंजाइटी है आपको अगर भीड़ भड़के से, तो आप चर्चन जाना बंद कर दें कि भाई वहां तो मेरी सांस फूलती है। अब एंजाइटी जो है 6 तरह की होती है। नंबर 1 जो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सबसे कॉमन एंजाइटी होती है। ये एंजाइटी आपको जनरल, आप एंग्शियस पर्सन ही हैं, आपको घर में भी एंजाइटी रहती है, बाहर जाइए, बाजार में, जॉब में, ड्राइविंग में, हर जगह है। लेकिन अगर ये एंजाइटी लगातार 6 महीने के लिए रहे, तब उसको हम बीमारी कहेंगे। उसके पहले कई लोग होते हैं थोड़ा बहुत एंग्शियस होते हैं, घबराहट होती है। आजकल कोविड-19 से घबराहट बहुत होती है, डरे डरे लोग घूम रहे हैं, मास्क लगाओ, ये लगाओ, नहीं लगाओ, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वो जब एक लेवल पर बढ़ गई कि जिसमें आपको दिनचर्या पर असर करने लगे, तब वो बीमारी होती है। दूसरी होती है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी है कि आप सोसाइटी में जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं, चर्चन जा रहे हैं, आपको घबराहट होती है, एंग्शियस होते हैं, भैया भीड़ में हम नहीं रह सकते। या क्लब वगैरह जा रहे हैं, उसमें हम नहीं जा सकते, या पब नहीं जा सकते, वहां पर शोर शराबा होता है, उसकी एंजाइटी होती है। तीसरी है, इसको कहते हैं फोबियाज। फोबिया मतलब किसी एक चीज के लिए डर या एंजाइटी।
फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि हमें छिपकली का फोबिया, छिपकली देखा हम घबरा गए, भाग गए। लिफ्ट में चढ़ने का फोबिया है, लिफ्ट में गए आप, उससे डर लगता है, नहीं भाई मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ूंगा चाहे मुझे सीढ़ी कितनी चढ़नी पड़े। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर जब एंजाइटी इकट्ठा हो जाती है और बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, जरूरत से ज्यादा, तो आप एकदम घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो पैनिक डिसऑर्डर होता है। अगली बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का हिंदी रूपांतर है वो वहम हुआ। तो आपको वहम हो गया कि आपका हाथ गंदा है, आप 10 बार हाथ साफ करते हैं। आपको वहम हो गया है कि घर का ताला खुला रह गया, आप लौट के आके ताला चेक करते हैं, हिला के फिर जाते हैं। या कई लोग को वहम होता है कि अगर हम घर से बाहर अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं तो बायां पैर पहले घर से बाहर जाना चाहिए, दायां पैर पहले जाना पड़ता है। क्रिकेटर्स हमारे सचिन तेंदुलकर राइट लेग का, दाहिने पैर का पैड पहले पहनते थे, राइट लेग पैड ही विल वेयर। तो ये सब होता है। तो ऑब्सेशन हम सब लोगों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब इतना हो जाए कि आप ताले को 10 बार चेक कर रहे हैं या राइट लेग पहले निकले उसको 10 बार कर रहे हैं, उसकी वजह से लेट हो जाए आपको लाइफ में और आप जॉब में लेट पहुंच रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तब वो बीमारी होती, तब वो डिसऑर्डर होता है। अदरवाइज ऑब्सेशन एक अच्छा तो कोई बुरी बात नहीं है जब तक वो आपकी दिनचर्या पर असर ना करे। एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, पूरी दुनिया ऑब्सेसिव लोगों से ही चलती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको आप किसी कंपनी के बॉस हैं, अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं, ऑब्सेस नहीं है, आप लेट आ रहे हो रोज, तो आपके एम्प्लॉय क्या होंगे? वो भी कहेंगे अरे बॉस तो आता नहीं 9 बजे, चलो 9:30 बजे पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही एक ऑब्सेसिव बॉस आ जाता है 9 बजे, तो सब लोग गिरते पड़ते पहुंचते हैं। तो ऑब्सेसिव से दुनिया की स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन हाँ वो बीमारी लेवल पर हो जाए तब इलाज कराने वाला है। लास्ट एंजाइटी होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब रात में कोई आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा ट्रॉमा पड़ा है, जैसे वॉर में एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, वायलेंस आपके आगे मारपीट होना, रेप होना, ये सब का ट्रॉमा की वजह से जब आप जिंदगी में एंग्शियस रहते हैं तो इसको एंजाइटी का सब टाइप है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये 6 टाइप के होते हैं। अब इससे होता क्या है, एंजाइटी से आपकी, जैसे आप एंग्शियस हुए, घबराए, तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का रश आता है, आपकी सांस बढ़ जाती है, आपका, ताकि आपके हार्ट रेट तेजी हो जाता है, ताकि आपके ब्रेन को खून जाता है, तो ब्रेन को खून जाएगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी और आपको तैयार करता है उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब 2 रेस्पॉन्स है, तो ये आपको एक्टिव अलर्ट कर देता है, या तो फ्लाइट या फाइट करते हैं, मतलब कोई घबराहट की सिचुएशन में या तो आप लड़ने को तैयार हो उस चीज से या भागने को। दोनों में इंटेंस एंजाइटी की वजह से वो आपके बॉडी को तैयार करता है। और एंजाइटी जो है 10 से 30 मिनट तक रहती है, वो सेटल हो जाती है उसके बाद। कभी कभी ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि आप मर जाएंगे। कभी आप देखते हैं प्लेन में चल रहे हैं और सडनली उसने 20 मीटर का डिप ले लिया, तो एंग्शियस हुए, शरीर हो गया टाइट, आप देखते हैं लोग आगे की सीट पकड़ लेते हैं, कोई अपनी सीट पकड़ लेते हैं, कोई आपके बगल बच्चा बैठा है आपका हाथ पकड़ ले, दबा के पकड़ लेता है। उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो बॉडी तैयार कर रही है कि घबराहट का, उसमें कभी कभी मौत का भी डर होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं एंजाइटी के? आपको लगता है कि चक्कर आ जाना, फेंट हो जाना, सांस नहीं आ रही है, मुंह सूख जाना, पसीना आना, ठंडा गर्म फील करना है, और चिंता, और एक जगह रुकना नहीं, ऊपर टहल रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आप मन में मन उचाट है, शांत नहीं है, डर लगना, और नमनेस, शरीर नम हो गया है, कह रहे हैं मुझे काटो, देखो यार कुछ फील नहीं हो रहा है। ये सारे एंजाइटी के सिम्टम हैं। इलाज के लिए, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि किसी से बात करिए, मन में मत रखे रहें, हम घबराहट, शर्माए नहीं कि कोई हमसे क्या क्या फील करेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में कि ये तो कमजोर आदमी है। इसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये बीमारियां किसी को हो सकती है, जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, उसी तरह एंजाइटी भी हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
किसी से बात करें, कोई किसी भी, आपका परिवार हो, भाई बहन हो, आपके दोस्त होते, कभी कभी आप परिवार से बात कर पाते तो अपने अच्छे दोस्त से बात करिए, और उसके बाद उन लोगों से बात करके फिर डॉक्टर को जाइए, अपने जीपी के पास जाइए, उनसे कहिए कि मुझे एंजाइटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपी फिर आपको कई सारे ऑप्शन बताएगा। हम दवाइयों पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो फोरम नहीं है, लेकिन इलाज मौजूद है? दवाइयां हैं नंबर 1 है, ये बहुत क्विक ट्रीटमेंट कर देती है, लेकिन दवाइयां एनफ नहीं है, दवाइयों से एंजाइटी का पूरा इलाज नहीं होता है। और उसके दवाइयां जीपी दे सकता है या साइकियाट्रिस्ट दे सकता है। कई लोग साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कंफ्यूज करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट लाइक मैं हूं, तो साइकियाट्रिस्ट पहले डॉक्टर होता है, तो मैं डॉक्टर हूं पहले, और उसके बाद फिर 6 साल की और ट्रेनिंग लेते हैं, तब साइकियाट्रिस्ट बनते हैं मानसिक रोग के। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते, वो काउंसलिंग करते हैं खाली, और साइकोथेरेपी वगैरह करते हैं, तो बातों से इलाज करते हैं। तो ये होता है। तो जीपी दवा दे सकता है और साइकियाट्रिस्ट दवा दे सकता है, और फिर उसके बाद काउंसलिंग। एंजाइटी के और इलाज हैं। लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ किया करो, योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, वॉक पर जाओ, दौड़ने जाओ, वो और भी वो भी इलाज है, आपको शांत करता है, मन की शांति के लिए। रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन करो, और एक्टिव रहो। एक्सरसाइज हम लोग बहुत कहते हैं, एक्सरसाइज करने जरूर जाओ, वॉक पर जरूर जाओ। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं 1000 स्टेप जो है रोज ले लो, 1000 स्टेप। शराब ना पीजिए, कॉफी कम कर दीजिए, ये सब से एंजाइटी बहुत बढ़ती है, और स्मोकिंग से एंजाइटी बढ़ती है। तो ये सारे इलाज हैं, और ये इससे जो है आप एंजाइटी से बचा जा सकता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन मेरे ख्याल से दुनिया का कोई आदमी नहीं होगा जिसने, आदमी औरत नहीं होगा जिसने डिप्रेशन नहीं सुना होगा। डिप्रेशन में क्या है, खाली वो मूड नहीं है कि हमारा मन उदास है। उदास एक डायग्नोसिस नहीं है, उसमें और सारी चीजें भी होती हैं। जब ये उदासी हम लोग को, सबको हो सकती है थोड़े पीरियड के लिए, किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन जब उदासी लगातार होती रहे और लगातार होती रहे, उससे आपके और सिम्टम्स आ जाएं और आपको दुनिया में रहना बेकार लगने लगे, और तब फिर उसको डायग्नोसिस कहते हैं। और उस उदासी से आपके अगेन परिवार में, आपके स्कूल में, आपके जॉब में और आपके सोशल रिलेशंस में असर करने लगे, तब वो एक्चुअल डिप्रेशन डायग्नोसिस होता है। तो उदासी तब बन जाती है डिप्रेशन। उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका व्यवहार बदलता है। जब आप डिप्रेस होते हैं तो क्या होता है, आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, घर से बाहर नहीं जाने का मन होता है, स्कूल नहीं जाते हैं, काम से छुट्टी ले लेते हैं, दोस्तों और परिवार से भी विड्रॉ रहते हैं, अपने कमरे में पड़े रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, हैं? और कई लोग नींद की दवा या एंजाइटी की दवा लेते हैं, या फिर अल्कोहल पीते हैं, और आपके सारे शौक मर जाते हैं। आप इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, बैडमिंटन या फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे, अब मन नहीं होता, बैट उठाते ही नहीं है, किसी चीज पर फोकस नहीं करते। तो ये तो व्यवहार में बदलाव आता है। और फीलिंग में आप कैसे फील करते हैं, आप हर चीज में घबरा जाते हैं, कहते हैं ये नहीं मैं झेल सकता, है तो बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए। गिल्टी फील करते हैं, मुझसे मैं बेकार हूँ, किसी काम लायक नहीं हूँ। चिड़चिड़ापन हो जाना, फ्रस्ट्रेट होना, अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी होना, और जनरली खुश ना रहना, फिर फैसले नहीं ले पाना। कोई आए ये करना है कि ये करना है, पता नहीं, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, इंडिसिसिव हो जाना, और हमेशा उदास रहना, अपने आप से कहना कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, जो भी मैं करता हूं मेरी गलती है? और फिर आप सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सब औरों के साथ होता है? हम यूजलेस हैं और जिंदगी में जीने के कोई मतलब नहीं रह गया, इससे अच्छा मर जाएं। हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हम अगर हम मर जाएंगे तो वो ज्यादा सुखी रहेंगे, हमारे परिवार वालों के लिए मैं बोझ हूं, तो ये दिमाग में आता है। शारीरिक सिम्टम उदासी के क्या होते हैं, हमेशा थके रहना, हम सर दर्द करना, बॉडी शरीर में दर्द रहना है, पेट की बीमारियां हो जाना, नींद नहीं आना,
है। खाना कभी डिप्रेशन में दोनों चीजें होती हैं, खाना कम भी खा सकते हैं और खाना बहुत ज्यादा भी खा सकते हैं, और अपना वजन लूज भी कर सकते हैं, वजन गेन भी कर सकते हैं, दोनों जगह चीज होती है। जैसे ये स्लाइड में एक दो चीज खाली बताने के लिए ये स्लाइड लगाई है कि 7% औरतों को और 4% ऑस्ट्रेलिया के आदमियों को डिप्रेशन रहता है हर समय। तो औरतों को आदमियों से ऑलमोस्ट डबल होता है डिप्रेशन। और जनरल प्रैक्टिस में अपने जीपी के पास 85% से ज्यादा डिप्रेशन की दवाइयां देते हैं, और डिप्रेशन होता है जो जीपी के पास जाते हैं, और डिप्रेशन की दवाइयां 85% जीपी लिखते हैं। और जीपी के पास चौथी मोस्ट कॉमन बीमारी डिप्रेशन है जो जीपी के पास लेके जाते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और जुकाम के बाद डिप्रेशन चौथा कारण है जीपी को। इसलिए हम लोग साइकियाट्रिस्ट लोग जीपी को भी बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वही देते हैं। इनफैक्ट हम साइकियाट्रिस्ट लोग कहते हैं कि जीपी जो है वो फ्रंट लाइन साइकियाट्रिस्ट है। मतलब आप जब उदास होते हैं पहले आप जीपी से मिलते हैं, हमसे बाद में मिलने आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब डिप्रेशन होता है फैसला करना कि वो दवाइयों से ठीक करने वाला डिप्रेशन है कि वो बात साइकोलॉजी काउंसलिंग से ठीक करने वाला डिप्रेशन है। और आपको एक जानकारी दे दे, बहुत सिंपल जानकारी, कई बार जीपी प्रैक्टिस में भी लोग मिस कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर को या आपको भी अपने आप पूछना चाहिए कि ये डिप्रेशन का किसी कारण की वजह से हुआ है और बिना कारण हुआ है। तो अगर जो डिप्रेशन बिना कारण है उसके सिम्टम क्या होंगे कि उदासी दोनों में रहेगी, डिप्रेशन दोनों में होगा। लेकिन आपने पूछा कि हमारे पास, कहते हैं भाई मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब है, हमारे पैसा है, अच्छा परिवार है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम डिप्रेस्ड हैं। ये अगर जवाब मिले कि मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता मैं क्यों डिप्रेस हूं, फिर भी मैं डिप्रेस्ड हूं, ये हम लोग कहते हैं एंडोजिनस डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन। मतलब है कि इसमें दिमाग में केमिकल चेंजेस होते हैं, और एक केमिकल होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन केमिकल दिमाग में कम होता है। सेरोटोनिन को हम लेमैन टर्म में कह सकते हैं हैप्पी केमिकल। तो वो आपको हैप्पीनेस देता है सेरोटोनिन, जनरल लोगों को। सॉरी, जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, और कोई कारण नहीं, आपकी सब चीज लाइफ में अच्छी है मगर आप उदास रहते हैं बिकॉज ये। अगर ये होता है एंडोजिनस डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, और इसको हम केमिकल डिप्रेशन भी कहते हैं क्योंकि सेरोटोनिन कम हो गया है, तब ये आपने दवा दिया, सेरोटोनिन को बढ़ाने की दवाइयां आती है बाजार में, वो आपने दिया और डिप्रेशन ठीक हो गया। कई बार आपने सुना होगा कि जी हम बहुत उदास से डिप्रेस थे, जीपी के पास गए, जीपी ने एक दवा दी और वो तो हम 1 महीने के अंदर ठीक ही हो गए। ये वो लोग हैं जो उनको केमिकल डिप्रेस था। इनमें उसके साथ कुछ काउंसलिंग दे सकते हैं समझाने के लिए, मगर मेडिकेशन मेन इलाज है। अगर डिप्रेशन किसी कारणवश है उसको रिएक्टिव डिप्रेशन करते हैं। अब कारण शरीर के अंदर हो सकता है, शरीर के बाहर हो सकता है। मोस्टली कारण शरीर के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पैसे की दिक्कत है, आपका कोई रहने की, आपका घर नहीं है, आप 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं घर, आपका रिश्ते में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मारपीट होती है, बच्चे आपके खुश नहीं है, ड्रगी निकल गए, अल्कोहल पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो उससे आप उदास रहते हैं, या आपके बॉस आपको डांटता है, वहां दिक्कत है, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। तो कोई भी कारण है, वो कंसिस्टेंट कारण होने के बाद अगर आप उदास हैं तो उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। शरीर के अंदर क्या है कि कारण से आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है, अब आपकी जिंदगी खाली 6 महीने की है, तो आप हो गए डिप्रेस, आप उदास रहते हैं उसमें कि हमारी जिंदगी 6 महीने की रह गई है। तो ये डिप्रेशन रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं कि किसी कारणवश आप डिप्रेस्ड हैं। अगर ये डिमार्केट नहीं करा, और कभी कभी हमारे जीपी भाइयों से भी इसमें थोड़ा वो
मिस कर जाते हैं। तो रिएक्टिव डिप्रेशन है और मेडिकेशन एंटी डिप्रेशन देंगे उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि केमिकल तो कम हुआ नहीं है। आप दवाई आप दुखी हैं कि मेरा बॉस डांटता है मुझे, तो दवाई देने से तो बॉस का डांटना कम तो नहीं हो जाएगा ना। आप दवा देंगे, अगले दिन फिर जाएंगे काम पर, बॉस ने डांटा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो दवाई से तो ठीक नहीं हो जाएगी। और इसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेपरेट करना कि कौन सी बीमारी हमको है। इसमें कई बार मैं देखता हूं अपने प्रैक्टिस में कि मरीज गया जीपी के बाद, उन्होंने 5-7 तरह की दवाइयां चेंज कर दी। एक दिया महीने भर के लिए, ये नहीं चली, अच्छा इससे नहीं हुआ ये ले लो, इससे नहीं हुआ ये ले लो, इससे नहीं हुई। और हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। तो जब तक हमारे पास आते हैं, हमने पूछा क्या हुआ, कहते थे हमें तो परिवार में क्लेश है, उसकी वजह से डिप्रेशन है। तो दवाई से कोई फायदा नहीं। ऐसे डिप्रेशन में कारण जो कॉज है या जो इश्यूज हैं उसको डील करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दवाइयां थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी, लाइक ए क्रच। तो आपने पैर में चोट लगी, आपको बैसाखी दे दी, बैसाखी से आप खड़े हो गए, लेकिन बैसाखी आगे तो नहीं चलेगी ना। तो बैसाखी आगे चलने के लिए आपको अपना जो ठीक पैर है उसको आगे बढ़ा के तब बैसाखी बनाएगी। तो रिएक्टिव डिप्रेशन में यही है कि दवा आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपने कारण नहीं डील किया तो आप फिर उदास हो जाएंगे और दवाइयां बदलते रहेंगे। तो कारण है कि लड़ाई झगड़े के लिए काउंसिल करो, बॉस का है किसी तरह उसको सॉर्ट आउट करो, एचआर में जाके बात करो। तो इस डिप्रेशन में साइकोथेरेपी काउंसलिंग मेन है। तो ये अगर आपने अपने इतना भी अगर आप आज की टॉक के बाद जनरल नॉलेज लेके जाएं कि 2 तरह के डिप्रेशन होते हैं, केमिकल और कारणवश, तो आप खुद अपना इलाज डॉक्टर से कह सकते हैं, भाई मुझे कोई कारण नहीं है डिप्रेशन का, मुझे लगता है दवा चाहिए। और अगर कारण है तो आपको डॉक्टर से कहिए कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजे, हमारे पास साइकेट्रिस्ट के पास ना भेजे, क्योंकि अगर कारण है तो साइकोलॉजिस्ट आपको टाइम दे सकता है काउंसलिंग करके। फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं, कपल थेरेपिस्ट होते हैं, वो सब आपको हेल्प कर सकते हैं रात दिन दवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसमें थोड़ा टाइम इसलिए खर्च कर रहा हूँ। अगर इसमें आप नहीं क्लासिफाई कर पाए तो गलत इलाज होता रहता है, और बहुत होता है, मैं देखता हूँ। ये इतनी सारी दवाइयां आज की तारीख में हैं, मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये इस फोरम का वो नहीं है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट 50 तरह के हैं, और ये नीचे वाले लेटेस्ट हैं जो आजकल आए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये जब हम ट्रेनिंग लेते थे 40 साल पहले, तब ये था इस तरह, इसे मॉडर्न जिधर राइट जा रहे हैं, इसे मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट है, और ये लेटेस्ट वन है। तो अवेलेबल बहुत सारे हैं, तो वो अपने डॉक्टर, आपके जीपी या साइकियाट्रिस्ट, हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके देख के कि कौन सा आपको सूट करेगा। और कई बार आपने सुना होगा साइकोथेरेपी, मैंने बता दिया। सीबीटी टेक्निक्स, सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब कि आपका कॉग्निशन मतलब होता है सोच, नेगेटिव सोच, और बिहेवियर होता है। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है, अगर आप कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, सोच नेगेटिव है, तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल, ये ग्लास में आधा ही है। तो अगर आपका मन नेगेटिव है, मन उदास है, तो आपको एक आधा ग्लास कोका कोला का दें और मन उदास है, आप कहते हैं आधा ही ग्लास खाली, तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो आधा ही ग्लास, तो आपने वो खाली वाला आधा देखा। उसी तरह जगह अगर आपका मन बहुत अच्छा है, खुश मूड में है, आपको आधा ग्लास कोका कोला दे, तो क्या आप क्या कह सकते, अरे वाह आज मेरा लकी डे है, आज मेरे कोक मिल रहा है। तो एक ही चीज में अगर आप ग्लास को आधा खाली देखेंगे तो आप नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं, ग्लास को आधा फुल देखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट देखते हैं। एक ही चीज को 2 नजरिए से देखा जाता है, और सीबीटी में आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। तो उसमें कई सारी नेगेटिव, आप कहें कि मैं किसी काम लायक नहीं हूं, मैं तो फेल हो जाता हूं, मैं काम में मुझे बॉस भी डांटता है। पॉजिटिव है कि भाई तुम्हारे पास जॉब तो है ना, अभी इतनी भी नहीं गलती किया तुमने कि अगर आज के जमाने में गलती करो जॉब से आप निकाल दी जाते हो। द फैक्ट कि आपके पास जॉब है, मतलब आप इतना भी नेगेटिव नहीं हो, थोड़ा हार्ड वर्क करके उसको चेंज कर सकते हो। एक ही चीज को 2 तरह देखा जा सकता है, और वही पॉजिटिव होने के ये टेक्निक है।
आप कह सकते हो कि मैं तो बहुत बेवकूफ हूं, मैं तो 20 तरह की गलतियां कर लेता हूं। ये नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव है कि यार मुझे पता है कि 20 तरह से गलती ना करो फ्यूचर में। तो वही चीज, गलती आपने भी की है, लेकिन आप कहते हैं हम चलो भाई मुझे ये तो पता चल गया कि 20 तरह से अब नहीं करो। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। और पॉजिटिविटी का एक और बात बताए कि आप कह सकते हो कि पॉजिटिव और होने से कई बार प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती सकती है। प्रॉब्लम है साहब, पॉजिटिव कैसे? आप कह रहे पॉजिटिव रहो, ये प्रॉब्लम सामने खड़ी है। तो मेरा कहना है उसमें कि पॉजिटिव रहने से कई बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, ये ऑफ कोर्स मानते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना ही एक रास्ता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव हो जाएंगे तो सॉल्व कैसे? आप करेंगे नहीं सॉल्व, आप मोटिवेशन नहीं है। इसी तरह एक और भी इलाज कहते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि आपको कोई से आपको 8 माले चढ़ने पर डर लगता है कि नहीं हम नहीं चढ़ सकते, तो इसमें आपको धीरे धीरे पहले माले पर जाने को कहते हैं। 4-5 दिन वहां जाओ, फिर धीरे से दूसरे माले पर, तीसरे माले। तो ग्रेजुअली आपको एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होता है, जहां आपको एंजाइटी होती है उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे आपको चैटस्टन में जाने में डर लगे तो पहले कहेंगे अच्छा भाई आप ऐसा करो मिल्क बार चले जाओ, लोकल मिल्क बार पहले 10 बार जाओ, वो एंजाइटी कम हो तो लोकल आईजीए में चले जाओ या लोकल कोर्स में चले जाओ, और फिर फाइनली चैटस्टन में जाओ। तो इसी तरह से और इलाज है, सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है। बैरियर क्या है, कहां पर आपको इलाज कहते हैं हम, आप कहीं इलाज नहीं है, उसमें कई बार हम लोग में अपने में ही गलती है। गलती क्या है, हम उदास है लेकिन कोई कहे यार तो मन उदास लग रहा है, नहीं 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 मैं ठीक हूं भाई, ठीक हूं। कई बार आप कह देते हैं, कई बार आप फैमिली से कहो मैं डिप्रेस्ड हूं, तो हमारे कल्चर में कई बार कहते हैं क्या है तुम्हारे मन में वहम है, ठीक तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, वो करके टाल देते हैं। और अगर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग फादर या ग्रैंडफादर ने थोड़ा तेज आवाज में कह दिया क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आप फिर घबराते हो किसी से बात करने में। तो एक ये बहुत बड़ा कारण हम देते हैं, अंडर रिकॉग्निशन। ये डायग्नोसिस रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, बिकॉज या तो आप खुद नहीं बताते हो, जिसको बताया उसने आपको टाल दिया, तो आप फिर एम्बेरस होते हो, शर्माते हो किसी और को बताने के कि वो हंसेगा। और कई बार इसी वजह से अंडर ट्रीटमेंट होता है, डिप्रेशन का इलाज पूरा नहीं हो पाता क्योंकि डायग्नोसिस एक्सेप्ट नहीं करते लोग बात। ये तीसरा है कि लैक ऑफ एक्सेप्ट नहीं करते कि डायग्नोसिस ये है भी। और कहीं से आप कहिए भाई उदास हो, ये दवा है, ठीक है, केमिकल डिप्रेशन में नहीं नहीं साहब हम दवा नहीं लेते हैं, हम कुछ और देती है, हम पूजा पाठ कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, काउंसलिंग कर लेंगे, हम दवा नहीं लेना चाहते। जबकि पहला जो डिप्रेशन है, जो केमिकल डिप्रेशन, उसमें दवा ही काम आएगी। और मैं ये नहीं कहता हूं सारे डिप्रेशन में, रिएक्टिव वाले में अलग बात है, लेकिन लोग मना कर देते हैं, फिर आगे चल के और डिप्रेस हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि खाना पीना छोड़ देते हैं, सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं, अपने को थोड़ा सेल्फ हार्म करने लगते हैं, अपने को इंजर करने लगते हैं, वो सब हो जाता है। और तब फिर हम लोग के पास इमरजेंसी में पहुंचते हैं। कई लोगों को डिप्रेस, नहीं नहीं मैं स्ट्रांग हूं, मैं इसको डील कर लूंगा। डील करते करते क्या करते हैं, वो प्रॉपर इलाज कराने के बदले डील करने के चक्कर में अल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारा कॉफी पीते हैं, वो सब करते हैं डील करने के लिए, रादर देन कि ओपन आए कहें कि मुझे उदासी है, मैं उदास फील करता हूं। और कई लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मैं इसको देख लूंगा। डिप्रेशन के और इतना सिंपल नहीं है कि मन उदास रहना। तो ये सिम्टम्स आपको बताएं, मन के सिम्टम्स, बिहेवियर के और शारीरिक, तो ये सिम्टम्स सारे डिप्रेशन के होते हैं मिला जुला के। तो मन का तो ठीक है, लो मूड हो गया, रोने का मन करता है, एंक्शस है या चिड़चिड़ापन, फील करना कि हम किसी काम लायक नहीं है, अपने आत्म सम्मान की कमी हो गई है, सुसाइड के थॉट आते हैं कि आत्महत्या कर लो, और गिल्ट फील होता है कि मैं तो बेकार का आदमी हूं। ये तो मन के इमोशंस होते हैं। बिहेवियर में क्या होता है, आपके व्यवहार में आप सोसाइटी से मिलना बंद कर देते हो, दोस्तों से आप पढ़ाई लिखाई पढ़ना, अखबार भी पढ़ना बंद कर देते हो, क्योंकि आप कहते हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं चल रही है।
किसी चीज को एंजॉय नहीं करता, आपकी एंजॉयबल चीज, पिक्चर देखना या टीवी देखना या स्पोर्ट्स खेलना मन ही नहीं करता। आप से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले शौक थे, अब उसको छूने का मन नहीं करता, रोते रहना है और होपलेस फील करना। शारीरिक सिम्टम डिप्रेशन के क्या होते हैं? थकान, पूरे बॉडी में पेन होना, हेडेक होना, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, ब्रोकन स्लीप होना, नींद नहीं आ रही अच्छी तरह, खाना कम खाना और पैल्पिटेशन। तो ये डिप्रेशन मतलब खाली ये लो मूड और रोना नहीं है, ये बहुत सारे सिम्टम मिला के डिप्रेशन होते हैं। और उसको सबसे कॉमन सिम्टम तो यही है, डिप्रेस मूड 76% लोगों में होता है, और सबसे कम थकान, भूख कम आना, ये सब 30-40% में। तो डिफरेंट डिग्रीज हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और सिम्टम हैं जो कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये डिप्रेशन के सिम्टम हैं, वो शारीरिक सिम्टम हैं जो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें याद है 1965 में, 1965 में एशिया में और इंडिया में कहा जाता था कि डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि उस जमाने में डिप्रेशन वर्ड के कोई माने नहीं होता। कोई किसी से नहीं कहता है यार मैं डिप्रेस्ड हूं, वो होता ही नहीं था वर्ड। लेकिन उसको फिजिकल सिम्टम के रूप में आते थे, शारीरिक सिम्टम में। उस जमाने में जब हम लोग ट्रेनिंग लेते थे तो कोई आए, साहब हमेशा सीने में दर्द रहता है, थकान रहती है, चक्कर आता है, सरदर्द होता है, स्वेलिंग है, बैक पेन है और नींद नहीं आती है, पेट दर्द रहता है, बाथरूम जाना पड़ता है बार बार, और मन सुन्न रहता है। कई बार डिप्रेशन इस रूप में भी, अगर ये सब आपको है और आपके जीपी ने टेस्ट कर दिया कि इसमें से कोई हार्ट प्रॉब्लम और ये सब नहीं है, माइग्रेन नहीं है, हेडेक है खाली, तो एक बार डिप्रेशन को रूल आउट करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये सिम्टम भी उस जमाने में 60-70 1970s और उसमें इस तरह इंडिया में प्रेजेंट होते थे डिप्रेशन के केसेस। तब डॉक्टर कहता अरे नहीं भाई, ये हेडेक तुम्हारा डिप्रेशन की वजह से है। अब बस कैसे हो, जब भी मिले कोई आपसे बात कर रहा है, आपका दोस्त कह रहा है, आपके माँ बाप कह रहे हैं, आपके बच्चे कह रहे हैं, उसको चुप मत करा दिए, अरे सब ठीक हो जाएगा, क्या तुम सोचते रहते हो हमेशा, चुप नहीं, उसको अलाउ करिए बोलने को विदाउट इंटरप्ट। उसको आप रोकिए नहीं, उसको मौका दीजिए पूरी बात अपनी खत्म करे, मन की बात बताए। अगर आपने इंटरप्ट कर दिया, चुप करा दिया, तो कभी नहीं बताएगा और एक दिन आपको पता चलेगा कि सुसाइड की बात कर रहा है वो। गौर दे के सुने रादर देन टाल के सुने, और उसको एम्पैथाइज, उससे मतलब कहें कि हाँ, उसको थोड़ा समझाएं, उसको सांत्वना दें और उससे मौका दें कि वो अपने पर्सनल बातें आपको कर पाए, चुप ना कराएं अगेन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि डायरेक्टली पूछे उससे सीधे कि भाई तुम क्या उदास रहते हो, डिप्रेस रहते हो, और फिर उसको इंस्टेंट के हाथ पकड़ के कहे मैं ये इलाज है वो इलाज है, उससे पूछें तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प करवा सकता हूँ। और देखें कि वो जो बात कर रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बोल रहा है तो उसकी वॉइस हल्की सी है, फुसफुसा के बोलता है, उसके चमक चेहरे की चली गई है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देख के तब आप हेल्प कर सकते हैं किसी को। और ये तो दवाइयां हैं। एक और चीज बता दें, बस अब हम खत्म करने जा रहे हैं, एक और चीज बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी इलाज कराएं आधा इलाज मत छोड़ें। प्लीज इसको रिमेंबर कर लीजिए कि आधा इलाज मत करें, डिप्रेशन पूरा ठीक करें। एक ये बहुत बड़ी स्टडी हुई थी कि अगर डिप्रेशन को आपने पूरा ठीक कर दिया विदाउट एनी सिम्टम, कोई एक भी सिम्टम नहीं बचा, तो उसके दोबारा आने के चांसेस 25% खाली होते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्रेशन गए, आपने दवाइयां डेढ़ महीने लिया, 2 महीने लिया, बंद कर दिया, पूरी तरह नहीं ठीक हुआ, आपने कहा यार मन तो ठीक हो गया है, थोड़ी एंजाइटी है, थोड़ी नींद की दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आपने आधा ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो आपको दोबारा होने के चांसेस 76% है। इतना फर्क है। पूरा ट्रीटमेंट के बाद साल 2 साल बाद दोबारा आ सकता है क्योंकि आप प्रोन है, लेकिन 25%, आधा ट्रीटमेंट अगर करा तो 76% चांसेस है फिर लौट के आएगा, आपको फिर पूरा इलाज करना पड़ेगा।
अब आजकल कोविड-19 का बहुत बड़ी परेशानी है। हम आम लोग जो कि कॉन्फिडेंट लोग हैं वो उनको भी बहुत घबराहट होती है। सबको डर लगा रहता है कि हमको इन्फेक्शन ना हो जाए। और आप सुनते हैं हम लोग की सबकी फाइनेंशियली असर पड़ रहा है, लोगों की जॉब चली गई है, घर से बाहर निकलते डर लगता है, घर में बंद हुए हैं उससे चिंता रहती है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, आपको खेलने का मौका नहीं, सड़क पर जाने का मौका नहीं है, परिवार के साथ अंदर बंद है। आजकल अब जैसे हमारे प्रीमियर कह रहे हैं कि शायद स्टेज 4 आ जाए तो एकदम ही लॉकडाउन हो जाएंगे, हम लोग घर के अंदर बंधे रहेंगे। उसकी वजह से घबराहट, फ्यूचर के बारे में डरना, इन्फेक्शन के बारे में डरना, जॉब चली जाना, पैसे नहीं है, पैसे की कमी होना, ये सब मिला के आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। फिर आपका कोई परिवार को दुर्भाग्यवश कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसकी डेथ हो गई है दादा नाना बाबा की, उसकी वजह से उदास रहना, फिर और डरना है। तो ये सब बहुत बढ़िया, इससे जो है अगेन आपकी रोजमर्रा में असर होने लगा है, अच्छे अच्छे लोगों को होने लगा है। अब देखिए फुटबॉल की टीम मेलबर्न से मूव करके क्वींसलैंड जा रही है, पूरी टीम एक होटल में बांध के 14 लोग साथ रहते हैं और मूव करते हैं साथ साथ ताकि कोरोना वायरस ना हो। कितना बदला है आपकी जॉब, जिन लोग की जॉब इंटर स्टेट ड्राइव करना था या फ्लाइट से जाते थे, उनकी सबकी जॉब ही खत्म हो गई है। समझिए कि इंटर स्टेट ड्राइवर वगैरह क्या कर रहे होंगे। और जॉब आपकी, कई लोग हम जानते हैं जिनकी यहाँ से सिडनी फ्लाई करके जाते थे लौटते थे, उनका खत्म हो गया है। और जॉब भी जाना दोबारा मिलेगी कि नहीं, फाइनेंशियली इफेक्ट करना, उसकी वजह से घबराहट में बहुत ज्यादा है। मैं अपने हॉस्पिटल में बहुत ऐसे मरीज देता हूँ जो कोविड के शिकार हैं। कोविड के शिकार मतलब आप बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ में पड़ती नहीं थी पहले, लेकिन किसी तरह चल जाता था क्योंकि हस्बैंड दिन में 10 घंटे घर से बाहर रहता था, जॉब करता था, वाइफ 5 घंटे बाहर रहती थी और शाम को 2-3 घंटे के लिए मिलते थे, तो ठीक है। अब 24 घंटे साथ रहने में लड़ाई झगड़ा होने लगा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं पेशेंट की हमारी तो अब सेपरेशन हो गया है। तो ये सब उसके और कोविड के बंधे रहने के साइड इफेक्ट हैं। हेल्थ खराब होती जा रही, लोगों को एक्सरसाइज करने ज्यादा नहीं जा रहे हैं और घर में बैठ रहे हैं तो पकवान पक रहे हैं, हर रोज नया नया खाना बन रहा है। आजकल तो सब सारे लोग मास्टर शेफ होते जा रहे हैं घर में, उसकी वजह से वजन बढ़ना लोगों का। कई लोग क्या एक बहुत गलत काम कर रहे हैं कि बीमारी को डर के मारे जीपी के पास जा नहीं रहे हैं कि जीपी क्या जाएंगे वहां कहीं हमें बीमारी नहीं लग जाए, तो ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा रहे 2-2, 3-3 महीने का, डायबिटीज शुगर का ब्लड टेस्ट नहीं करा रहे हैं, भाई बाद में कराएंगे, अभी जाएंगे तो कहीं बीमारी नहीं लग जाए। हो क्या रहा है कि इससे बीमारियां और बढ़ रही हैं। सर्जरी कैंसिल हो रही है, सर्जरी कैंसिल होने की वजह से आपका जो बीमारी है जिसके लिए सर्जरी करना था वो बढ़ती जा रही है। अब ऑर्डिनरी ट्यूमर बाद में कैंसर ना बन जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर तो लगता है लेकिन आपको उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाओ। अब ये मैंने पहले भी बता दिया, जल्दी से कर देते हैं। जब आप ये सारी बीमारियां हो, कॉन्फिडेंट मतलब आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं, दोस्त परिवार से बात करिए, जीपी के बात करिए, एक्सेप्ट करिए कि हमें डिप्रेशन एंजाइटी है, और ये सब काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब काम हो सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यही मैं ये एक लाइन से बता दिया है, तो आप भाई स्टार्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, डॉक्टर पास जाइए, अपना ध्यान रखिए, डाइट, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स जितना मेंटेन कर पाए कर लीजिए, ओपननेस है, परिवार है उनसे बात करते रहिए। और ये समझिए कि हेल्प मांगना एक कमजोरी नहीं है बल्कि एक पावरफुल ताकत। आपको, आप हिम्मत वाले हैं कि मुंह खोल के कह रहे हैं मैं डिप्रेस हूं, किसी की तरह अपने मन के अंदर बैठ के एक दिन सुसाइड नहीं कर ले रहे हैं। तो ओपन आके कहना कि मैं डिप्रेस्ड हूं, वो एक स्ट्रेंथ की पहचान है रादर देन कमजोरी की। कुछ फुटबॉल प्लेयर, एक आध हमारे पॉलिटिशियन, मिनिस्टर खुल के आए कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रहा हूं, मैं 3 महीने की छुट्टी ले रहा हूं। वो बहादुरी है कि आप बाहर निकल के आए, उसको कमजोरी नहीं देखें, हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब अगर आपको, एक तो जीपी के पास जाइए, अगर नहीं मिल रहा है तो कई सारे मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये जो हमारा मेंटल हेल्थ फाउंडेशन है, ये लोग आपका हेल्प करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे जगह हैं। प्रोफेशनल लोग क्या, इन लोगों से हेल्प मांगने से है कि आपको रास्ता बता सकते हैं,
इम्पार्शल होके कि आप डॉक्टर के पास जाओ या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, या जैसे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन है ये आपको हेल्प कर सकता है, या सपोर्ट ग्रुप है कोई कम्युनिटी में हेल्प कर सकता है, और अपने बेसिक लेवल की ये लोग काउंसलिंग भी दे सकते हैं। और ये सारे फोन नंबर्स हैं, ये लाइफ लाइन, सुसाइड लाइन, सुसाइड कॉलबैक सर्विस, ये सारे नंबर आप जो है इंटरनेट पर देख सकते हैं, या मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के साइट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू जिम, ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। Thank you very much, Doctor. That's been a very, very illuminating presentation, and we have had a lot of activity on chat. We also have 5 questions on the Q&A. Maybe I'll just refer one of the questions that came through on chat from, let me see, Poonam asked about the problem of, or this person's concern was with prescribed medications, that it's hard to stop them as there are withdrawal symptoms. What is your view about that? What is your advice about that? Is that correct or not? It's a very good question, very, very good question. And there's fear. I should talk in English or Hindi? Perhaps English, because the question came through in English. Oh, okay, all right. If you would be so kind. Yeah, no, yeah, but absolutely. Look, it's a very pertinent question, and there are some medication which can be addictive, and coming off can be difficult. But as I showed you one of the slide, nowadays we have around 15 antidepressant, and if you go to an experienced person like a psychiatrist or a senior GP, they can prescribe something which can be easy to come off. There are certain antidepressant, especially the older one. I can name one. It's called paroxetine. Paroxetine has been for 40 years. Aeropax is its name. That one, a lot of GPs, I don't know why they like now. It was in olden time. That one is very difficult to come off. And because the withdrawal symptoms are so severe, you rather remain on that. And that is true with few medication. But a lot of modern medication are easy to come off. There's one medication called Nardil. Now, Nardil was very good antidepressant used for 40 years. This year, Nardil company is not making money. They've closed shop. And now I'm getting patient coming off it, and Nardil has a severe withdrawal symptom. I have to admit patient for 2 weeks in the hospital to manage them. So, answer to your question is, not all medication are difficult to come off, and you should only talk to an experienced therapist or doctor, because like if you are my patient, for example, an experienced psychiatrist, I will first try to give you something, and maybe after a year or two, when you are absolutely normal for a year or two, I'll try to take you off it. And if you can go well for years, but if coming off, you again get depressed, then the second line is to give for 5 years. Then I try to take you off again. And if again you get depressed, then probably lifelong. So there will be a small group of patients where we have to give lifelong. But okay, so summarizing question, yes, there are some medication which is difficult to come off, but not all antidepressants are addictive. The modern ones are very clean. Thank you, Doctor. Madhap asks us a question. I think it's more in terms of advice. Sometimes when someone comments about you in a derogatory manner and it impacts you heavily, it sits on your mind for a few days and you have a lot of sleeplessness as a result. If you try to explain your position, then it appears you are at fault. How do you deal with this situation? Now, this is asked by Madhu Srivastava. I can see the name. Yes. Yeah. So, look, of course, if somebody is talking to you in a derogatory manner about a mental health, of course, that person is not a good one to talk to. But you talk to, as I mentioned, to a confidant, a friend, a family who understand. And then after that, if the friend says, all right, this is affecting you too much, then you go to GP in that order. Your confidant may be family or a friend. And then next step is GP. And also, if somebody is derogatory,
obviously that person is not understanding this illness himself. As I said, there are a lot of people, there are a lot of denials of mental health. They said, I'll be all right, there's no problem, and they go and drink alcohol. So yes, so don't feel down. It is not your fault. You should not feel guilty. It is the other person's fault. You talk to your confidant. Poonam asks the question, but in community services, we are being taught not to use certain words, or at least some things. Yeah. What communication strategy do you use? I think it's a personal question to you, in terms of not being discriminatory or derogatory to people. So now we are saying, I'm not sure. So you're talking about the word, not to use the word means depression. She's talking about. I'm not sure. I'm not sure. She hasn't really not to use the specified. word. Either she's talking about not to use mentally ill, not to use psychiatric illness, or not to use depression or psychotic word. I think that's probably a good way to take it. Yes. Yeah. Now, in general terms, of course, we should not be using those terms unless you know the person or they are very close to you, they are friend, or they are seeking advice. In general, you can't be in a social situation and say, hey, yeah, you look depressed, there is treatment, go and take treatment. Of course, that's not good. But using general terms like mental illness, we should be speaking. The more we speak, the more there will be awareness. We should not be putting it aside under the carpet because it is coming up. As I said in my talk, that by 2030, number one medical problem in the world is going to be depression and anxiety. It is number one in women in the world anyway. As of today, men are number 3, but both will be number 1. So there's no harm in talking, but we should not use derogatory word or in abusive way. I'll give you a couple of examples. When I was training, we used to call it diagnosis manic depressive disorder. Now, manic depressive gradually became a sort of abusive word. You behave a bit abnormal in social situation. They will say, hey, you become manic depressive. You're behaving like manic depressive. So International Psychiatric Community in 1985 actually had to change the word because manic depressive was using a social situation to abuse someone. So in 85, we changed from manic depressive psychosis to bipolar disorder to soften it. So, similarly, the one diagnosis which we see these days, which people use in almost like an abuse, is personality disorder. And it is not today, 25 years back. I was the head of the CAT team in Ballarat 25 years back. And even my team, professional team, psychiatric team, in their reporting to me will say, oh, that patient is a PD. Oh, that's a PD, Dr. Verma. So what is a PD? You're labeling, instead of taking the name of the patient, you're talking PD. PD is personality disorder. I said, no, that person is not PD. That person is Mr. or Miss so-and-so suffering from PD. You're actually labeling the person as PD. So those type of derogatory words should be abstained from. Good, thank you, Doctor. Eltaf Muhammad has said, has spoken. I won't read the whole thing. Spoken about the difficulties of today's life, work, job, family expectations, etc., and sometimes how heartless corporate life can be. Their concern about making money, etc. For the common man, this is very difficult, and people can become ill as a result with all these rules and issues and requirements of corporate life. Is the right solution to get away from a materialistic life and to live life as our ancestors lived a natural life? Yeah, that's a very good question. And there's no simple answer to that, because our parents, our ancestors used to live very simple, basic life, but we ourselves have complicated. So life has become very complicated, very modern, and yes, every country in the world, big organization are chasing money.
the solution is to get away from it, but we cannot get away. It's basically wishful thinking. The best way to deal with it, and the way I deal with it, is you set a level of contentment. When I talk to patient, I don't ask them, are you happy? Because I'm not happy all the time, but are you contented? So what you have, as long as you set a contentment level, you can live in this materialistic world. A small example, how we create problem for ourselves. We go to buy car, say with our, for example, with our son or wife. You go and buy a car, and you buy a car within your buying limit. So if you bought a $30,000 car, a $25,000 car, you bought a brand new car from a showroom. But as a human being, what do? We're driving back. Next time we'll buy that one which you could not buy today. You have just bought a new car. Instead of celebrating, coming home in the car, you're saying to your wife or your son that next car we'll take that one. So means you're not contented. You just bought a brand new car. Enjoy it. But we raise our level and we are not contented in anything. So as soon as you get contented, contentment is the best thing in this modern world. Thank you. Poonam has asked another question, or several questions, but I think they come down to the connection between depression and trauma, and especially childhood trauma. Can depression be as a result of trauma? Yeah, I can see the question here. So you say, so the trauma is reactive effect. Yeah, trauma can lead to reactive depression. But if there is a constant trauma as childhood trauma you are talking about, and it is consistent for years, that reactive depression over the years can be converted into chemical depression also. And then it is called double depression. There's a diagnosis, I didn't go for general community, but it is called double depression, means a reactive depression on a chemical depression. You're already depressed chemically, and then suddenly your wife divorces you, or suddenly you get attacked. You have a car accident, your hand is chopped off. So reactive depression on chemical depression. So, and this second question which you heard, I mean, what kind of depression comes from trauma, childhood trauma? When the depression goes so long, then that is one category which we call post-traumatic stress disorder. Thank you very much. Sunny Chandra has asked, how can a person with mental health problems who is not holding Medicare be helped? Receive treatment by a GP or psychiatrist is very costly. That in Australia is really very difficult. If you don't have Medicare, then there are some self-help group, there are some council-run groups which can help you there. There are some voluntary organization, and sometimes we all come and help you, but we cannot help too much. Every now and then I do get someone who has come from overseas, and a classical example, and I felt very emotional that day. A couple came very sick, mentally sick, and I helped them. I gave a script for medication, and then suddenly both husband and wife just came and touched my feet and held my feet tightly. I said, what happened? We don't do this here in Australia. Go and sit. They said, we don't have money. I said, no problem. We don't have money. You have Medicare card. No, we don't even have Medicare card. So I said, how are you living here? So I said, okay, never mind. I won't charge you. I'll see you 5 times. I said, I'll see you every 2 weeks for 5 sessions. I won't charge you anything. And in 5 sessions, I'm confident to help you, and then you can move on. So every now and then we do that. I do myself, and a lot of my colleagues do, because they end up seeing some of the patient like that. And there are a lot of doctors who can help you in this situation, but mostly a voluntary organization will help. Sunny, can I just add to that, that the Mental Health Foundation runs a support group for the Indian community, and we would love to hear from you at the Mental Health Foundation Australia. You also say, I believe that you may not have a visa. If you don't have a visa, we do have an expert in the Mental Health Foundation, in fact, our chairperson, Vasan Srinivasan, and he may be able to give you some very good advice
regarding getting a visa. So I do encourage you to get in contact with the Mental Health Foundation, please. There's also a question, should we follow any kind of particular diet for depression, doctor? The diet which we refer is very standard. We all know that it's a healthy diet, and alcohol should be cut off. Extreme coffee, like excessive coffee, alcohol, and rich food, fatty food, we should avoid. Otherwise, there's no specific diet like that. Good, good. And we have, probably we'll make this our last question, because you've no doubt had a long day, doctor, and you've given considerable effort and energy into tonight also. This is from Veena. As a counsellor, I see a number of my clients prescribed antidepressant medications for reactive depression. How can we reduce that, is the question. That's a very good question, and I feel very sad when I see this. And that is why I said initially that we should always demarcate reactive depression to chemical depression. And Veena, yes, I can empathize with you. It's a very sorry state of affairs. You can ask the patient to go back to the doctor and talk to, and at least what I do, I explain the patient the difference between reactive depression and chemical depression, and give few example, and then they deal themselves. They go and talk to a doctor and say, this is not working and looks like I need only counseling. I'll go ahead with the counseling. Yeah. It's a tough one. Doctor, look, it's a very tough one. Yeah. Doctor, I'd like to thank you very, very much for your presentation tonight and your precise answers and the empathy that you've shown with the questioners and the questions that they've asked. It's been an honor to have you, a great, we're very respectful towards you here at the Mental Health Foundation. We know how much you've helped people and what a wonderful history of helping people with mental health issues in the community that you've had. And the Mental Health Foundation hopes and encourages that we might all keep in contact and into the future. So thank you very much for your donation of time and expertise tonight. And there has been very positive feedback. Many people have said, when is our next presentation in Hindi, because they've enjoyed this one so much. So I think that's should be very gratifying to you. Thank you very much, Doctor. Jim, I'm very happy to come back again if I can help any topic you can. Today it was very general, but you can select a small topic or one topic and I can speak. I'm happy to come back again, no problem at all. Thank you, Doctor. It's been extremely kind and generous of you. Thank you very, very much. And before we finish tonight, I would just like to people to be aware that we are running a whole series of multicultural seminars in different languages. Next Tuesday night, that's July 21st, we're having a webinar in Mandarin. So Tuesday night at 7 p.m. I look forward to seeing, well, maybe some of you, because I know we have some very clever people here who are very adept at languages and not only speak Hindi, but Malay and Urdu and perhaps even Mandarin as well. So if you do, welcome back. If you don't, encourage some of your friends to listen in. Thank you very, very much, everyone, for attending, and wish you all the best and best of mental good health to all of you. And thank you once again, Doctor, for your contribution. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.